हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई के जो है कक्षा 11th की इतिहास, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है समय की शुरुआत से। ये इतिहास का चैप्टर है, यानी एनसीईआरटी जो है हम करेंगे सीबीएसई के क्लास 11 हिस्ट्री जो है फ्रॉम द बिगेनिंग ऑफ द टाइम। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और ये एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ तक कि एग्जामिनर इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, write a description about the origin of human beings. You know that there is the most important according to this chapter. Write a description about the origin of human beings. This is the most important. The story about the origin of human beings is a very long. The story of here, origin of human being, there is a very long and there is a complicated, because time to time the changes of their story here. Different view in the regards has to given there is still process of discovery is going on. This is important. There is a long and complicated, because there is still an process of discovery of going on and different time different here. The first point, there is a archaeological order to the number of events has a change due to the new discoveries as excavations made so far. And there is a plenty of scope left for the excavations. Note that is important. And the early humans passed through the several stages of journey to become a modern man. You know that is important. The early human passed a several stages of journey become to the modern man. This is most important here. You know that there is a stage here coming, the very stage which will throw light on the story of progress made by the man from the very beginning to the present day are given below. There is a step by step of stage. There is a beginning of here, of very stage here. The first stage here, pyramids. The pyramid, there is early human come into the beginnings of Africa and Asia about 36 to 24 MYA, and this consists of subgroup of the large group of mammals such as monkeys, ape, and there is humans, and they had here on the bodies and different kind of teeth. This is the first stage here. A pyramid is here. That Asia and Africa, there is about 36 to 24 MYA. There is the most important period times, and there is starting stage here. The large group of members is a monkeys and ape, and human there is, and here is the most important things here. The hair in other all part of the body and different kind of teeth here. And second stage is a homonioids. Homonioids, this is an important stage here, and they come into the beginning about the 24 MYA,
and they had 4 legs and used to the move on their 4 favors. You know that is an important stage. There are 4 legs and used to be moved on their 4 paths. The first portion of their bodies and the legs were quite flexible but were unable to the walk erect. It's an important point here. And that their body different from the monkeys because they are competitive, large and has no tail. You know that is important. Different from the monkey because it's a large and they have no tail. It's no tail means to not a monkey. And hominids, there is a next stage. They belong to the hominids of family and come into the extent about 5.6 MYA. You know that you confuse here. MYA means million year ago. There is a 5.6 million year ago here. And their earliest fossils and excavated at the lactoils and there is a hardest is both Africa. The reason there is a Africa and the Asia here. And it is a clear evidence that there is an origin in Africa. There is the most important evidence here. There is originate here, Africa. And there are fossils were also found the outside of Africa. This is the most important point here. There evidence here originate of Africa and also is important evidence here the fossils were about they found outside Africa. You mean there is the most important origin here अर्ली ह्यूमन दिस इम्पोर्टेंट। यहाँ पर जो हमारे समक्ष क्वेश्चन आया है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जिन्होंने हिस्ट्री ले रखी है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में वो क्या जानते हैं। यानी मनुष्य के उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हो, कैसे जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी। ये बहुत बड़ा इतिहास है और ये बात जानना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर हम मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मनुष्य की उत्पत्ति किन कारणों से हुई है और हर कारण पर जो है प्रकाश डालेंगे। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में आप क्या जानते हो, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। कुछ व्यक्तियों का विचार कुछ है, किसी व्यक्ति का विचार कुछ है। कुछ तो ये कहते हैं कि मंकियों का जो है हम पूर्वज है, एपिस का है, लेकिन शायद संभव ऐसा नहीं है। कहते हैं मंकी में तो अगर देखा जाए तो टेल्स होते हैं बड़े बड़े, बट इंसानों में टेल्स शुरुआती अवस्था में भी देखने को नहीं मिला। अफ्रीका में जब इनके कुछ अवशेष मिले तो टेल्स की कोई भी जो है संरचना देखने को नहीं मिला। कहते हैं इंसानों की उत्पत्ति के विषय में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ये जानना हमारे लिए बहुत काफ़ी दिलचस्प भी रहेगा। कहते हैं ये एजुकेशन बेस से तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्लस जो बच्चे कुछ जानना चाहते हैं और कोई यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन डालना स्वाभाविक रहता है और इसी बेस पे कई एमसीक्यू तैयार भी किए जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर मनुष्य की उत्पत्ति के, तो कहते हैं मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी बहुत लंबी और जटिल है, जिसके बारे में साइंटिस्ट आज भी जो है फेल हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि मनुष्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई होगी। लेकिन कुछ विचारधारा है जिसको यहाँ पर प्रकट की गई है। इस संबंध में अलग अलग मत दिए गए हैं और सभी भी खोज की सिलसिला अभी भी जो है जारी है, अभी ख़त्म नहीं हुई है। और अब तक की गई नई खोजों और उत्खननों के कारण घटनाओं की संख्या जो है कालानुक्रमिक क्रम बदल गया है। आज देखा जाए तो कालानुक्रमिक क्रम जो है बदलता ही चला जा रहा है खोज के अंतर्गत। कहते अगर देखा जाए तो उत्खनन की काफ़ी गुंजाइश बाकी अभी है। अभी हमें बहुत कुछ जानने की जो बात है, अभी बहुत गुंजाइश है कि हम बहुत कुछ जानेंगे। आरंभिक मानव आधुनिक मानव बनने की यात्रा में कई चरणों से गुजरे हैं और कई तरह की समस्याओं का सामना किया है, तब जाके जो है मनुष्य को जो है मनुष्य का रूप प्राप्त हुआ है। आरंभ से लेकर आज तक मनुष्य द्वारा की गई प्रगति की कहानी पर प्रकाश डालने पर विभिन्न चरण हमें नज़र आते हैं और इस चरण के जो है विशेषताओं को जानना आपके लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। सबसे प्रथम अगर हम देखें तो पहला जो यहाँ पर स्टेज दिखाई गई है प्राइमेटस। प्राइमेटस का जो मतलब होता है आरंभिक मानव।
जो अफ्रीका और एशिया में लगभग जो है 36 से लेकर 24 MYA, इसका मतलब हुआ मिलियन ईयर अगो में अस्तित्व में आया। यानी आप समझ सकते हो कि 24 से लेकर 36 मिलियन जो है साल पहले इनकी जो है कुछ आरंभिक मनुष्य को अस्तित्व में थी। और वो बंदरों जैसे, बानर जैसे और मनुष्य जैसे स्तनधारियों के एक बड़े समूह का उप समूह बनाते थे। यानी देखा जाए तो उनको एक समूह में हम वर्गीकृत नहीं कर सकते। उनके कई लक्षण थे, वो बंदरों जैसे भी थे, बानर जैसे भी हो सकते हैं, और मनुष्य जैसे स्तनधारी के बड़े ही समूह को उपसमूह बनाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये था कि उनके शरीर पर बाल और विभिन्न प्रकार के दांत थे। यानी आप समझ सकते हो कि आज इंसानों के बाल नहीं हैं, नज़र नहीं आते हैं, तो वो विकास के ही चरण के अंतर्गत हो सकते हैं। देखा जाए तो उनके शरीर पर बाल थे उस समय और विभिन्न प्रकार के दांत थे, जो उनको जो है मांसों को खाने के लिए पर्याप्त थे। क्योंकि कहते हैं जैसे समय बदलता गया, इंसान में जो है बहुत सारे बदलाव देखने को मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर अगले स्टेज की अगर हम बात करें, हेमिनियोइड्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेज था, जो लगभग 24 मिलियन ईयर अगो अस्तित्व में आए। 24 मिलियन की बात बताई गई है, तो ये बहुत लंबी काल अवधि है। और उनके 4 पैर उस समय हुआ करते थे। यानी जो हाथ थे वो भी वो पैरों की तरह ही इस्तेमाल करते थे, और वो अपने 4 पंजों पर चलते थे। और उनके शरीर का पहला हिस्सा और टांगें काफ़ी लचीली थी, लेकिन सीधे खड़े होने के चलने में असमर्थ थे। यानी देखा जाए तो 4 पैरों की तरह इस्तेमाल करते थे। 4 पैर यानी हाथ भी जो है पैरों की तरह प्रयोग करते थे, और वो खड़ा होने में सक्षम नहीं होते थे। तो इसका अर्थ यही हुआ कि आज जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे की तरह ही इंसान का अस्तित्व भी पहले वैसे ही था। उनका शरीर बंदरों से भिन्न था, क्योंकि तुलनात्मक रूप से बड़े थे और उनकी कोई पूंछ नहीं थी। देखा जाए तो कई साइंटिस्ट, कई लोगों का विचारधारा है कि बंदरों से जो है इंसानों की जो है बदलाव हुई है और इंसान बने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर तुलनात्मक रूप में हम देखें तो बंदरों में देखा जाए तो पूंछ होती है, लेकिन उस समय हमें जो अवशेष मिली है उसमें पूंछ का नामो निशान तक नहीं था। तो ये बात साबित करता है कि उनके शरीर बंदरों से भिन्न था और बहुत ही बड़े हुआ करते थे। लेकिन आज भी देखा जाए तो बंदरों का शरीर बहुत छोटा होता है। तो बंदरों से तो हम तुलना करना हमारे लिए यहाँ पर पुण्य जो है गलत है। अगर आगे बात करें हेमिनियोइड्स की, तो वो हेमिनियोइड्स परिवार से संबंधित थे और लगभग देखा जाए तो 5.6 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। यानी 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए। और उनके शुरुआती जीवाश्म की खुदाई जो लैटोटोलिस और हेडस दोनों अफ्रीका में की गई थी, और इस बात को स्पष्ट प्रमाण भी है कि उनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी और उनके जीवाश्म अफ्रीका के बाहर भी पाए गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि देखा जाए तो मनुष्य की उत्पत्ति जो है अफ्रीका में बखूबी हुई। कहते हैं अगर हम यहाँ पर उत्पत्ति के विषय में विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश किए, और काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ थी कि उनकी उत्पत्ति जो है 36 से 24 जो है मिलियन ईयर अगो हुई। और हम ये साफ क्लियर कर चुके हैं कि इनकी बंदरों की तरह कोई भी उनकी हरकतें नहीं थी। यानी देखा जाए तो बंदर तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं कि इंसानों की उत्पत्ति के अंतर्गत, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये जीवाश्म जो हमें मिले है अफ्रीका के बाहर भी पाए गए हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए जिन्होंने हिस्ट्री ले रखी है। अगला क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया और कुछ ज्ञान प्राप्त किए हो, तो जर्नल सी बात है आपको भी तिरपान स्टडी सेंटर का मदद करने का समय है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, ठीक है, तो जर्नल सी बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही तिरपान स्टडी बना है
और आपके लिए हर कक्षा का जो होगा वीडियो यहाँ उपलब्ध होगा, चाहे वो 8th हो चाहे एमएथ हो, सभी के यहाँ पर वीडियो रहेगा और ये बनता रहेगा। और इसीलिए जो है सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए, तभी जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी जो है इन वीडियो से आप लाभान्वित हो सकोगे।